Hello students, today we are going to discuss chapter number 14 from our syllabus, which is the next topic. After studying that supply of money children, we come towards studying what is called as the demand for money. Children, as supply of money basically arises from the monetary authorities. Or monetary authorities may basically like we have the Reserve Bank of India. Then we also have the government and the commercial banks which are also associated. Children, when we talk about the demand for money, जब हम लोग बात करेंगे डिमांड फॉर मनी के बारे में, तो वी आर बेसिकली कंसर्न्ड विद द पब्लिक कि लाइक व्हाई डू पीपल डिमांड मनी. So children, it is very important that first of all we understand like why do people demand money. Now we all are aware children that money is used as a means of payment. क्या बोला? Money is used as a means of payment. अच्छा, और भी बहुत सारे पैसे के हमने functions देखे children. It's also called as a store of value. अच्छा, as we already explained in the earlier topic. अच्छा, now a very simple sentence children which I am going to tell you is that why do people demand money? The usefulness of money makes people demand money. So children, can we say like this that people demand money because money is useful? अच्छा, और पैसे के जनरल यूजेस हम लोगों को पता है that people either demand money to spend on goods and services or sometimes people also wish to hold some idle cash. तो या तो हम लोग बच्चों लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं या तो फिर वो पैसा हम लोग ऐसे ही आइडल रखना चाहते हैं. अच्छा, तो इसमें से दो अलग अलग चीजें इन्वॉल्व होती है चिल्ड्रन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट व्हाई डू पीपल डिमांड मनी एंड दूसरा कि लाइक व्हाट आर द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी. Now if you want to answers to this question children, then we will have to analyze two different approaches. जैसे कि मनी सप्लाई की दो अलग अलग अप्रोचेस पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पे चिल्ड्रन. एंड द फर्स्ट वन, एज यू नो चिल्ड्रन, इट्स कॉल्ड एज द क्लासिकल अप्रोच एंड द सेकंड वन चिल्ड्रन विल बी नोन एज द Keynesian approach. Okay, now here children, like we will just begin with the classical approach first. Now whenever we use the word children classical, so we will always associate ourselves children with the economists like David Hume, then John Stuart Mill. We also have Irving Fisher. अच्छा, इन लोगों ने पैसे के कौन से फीचर को, कौन से कैरेक्टरिस्टिक को ज्यादा हाईलाइट किया था? सो दे एम्फसाइज्ड ऑन द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी. और जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था चिल्ड्रन कि लाइक द स्पीड विथ विच मनी रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कल ऑफ पेमेंट्स व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड एज द वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन. So, according to them, people demand money because money is used as a medium of exchange, and that is why people require money to carry out the different transaction purposes. अच्छा, तो बहुत सारे economic transactions होते हैं बच्चों लोग over a period of time, and money will actually facilitate smooth transaction of goods and services in the economy. Can you just imagine this world, children, without money? No. Then there will be no flow of goods and services that would take place. People not able to save, to invest, and majority of the economic transactions would actually come to a halt. Acha, so according to this approach, children, people demand money because they want to carry out the day-to-day transactions. तो इसमें से आता है बच्चों Fisher's equation of exchange, which is actually expressed as MV is equal to PT. क्या दिया children? MV is equal to PT. And in that children, हर एक का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो M would actually stand for money supply. अच्छा, V का मतलब होता है ट्रांजैक्शन का वेलोसिटी. अच्छा, P will actually stand for the price level and T stands for transaction. Now here children, you actually come to know that कि like ये जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन का, okay, so that actually represents the demand for money. P multiply by T. क्या दिया है? P multiply by T. तो price level multiply by the number of transactions that take place. So that will tell you like how much money is required. Children, if every month I'm paying 500 rupees as my internet charges for my Wi-Fi, and then I'm going to pay this 500 rupees 12 times in a year.
So what is my demand for money? It's like price is how much? 500 multiply by, I'm going to carry out these transactions almost for 12 times, no? So 500 multiply by 12, so 6,000 rupees children I would require. So that's the demand for money. So right hand side of the equation tells you about the demand for money. Acha, when we see about the left side children, we already know that M multiplied by V, that is stock of money multiplied by its velocity, is equal to the supply of money in the economy. Okay, so here children we go, that is the MV, which is actually nothing but it is, as I said, like represents what is known as the supply of money को represent करेगा. अच्छा, तो equilibrium supply of money equals, जब supply of money would become equal to the demand for money children, then would actually come to know that like that will be the equilibrium point as such. Okay. Achha. Now we need to understand one thing children, like the transaction demand for money would actually depend upon the level of employment in the country, that is as per the Say's law, that the supply would create its own demand. अच्छा, इस इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा चेंज कर दे तो क्या इक्वेशन तैयार होगा बच्चों लोग? एंड द इक्वेशन दैट वुड एक्चुअली कम अलोंग इज समथिंग रिलेटेड टू लाइक दिस. ये एम को हमने एक साइड में रख दिया है और ए पी टी, तो जो बच्चों लोग v बाकी रहता है तो ऑटोमेटिकली लाइक एम डी इज इक्वल टू पी टी अपॉन वी. So children, this is the demand for money that we have, price multiplied by transactions upon velocity. अच्छा, so यहाँ पे हम लोग दो तीन एस्पेक्ट सीखते हैं. नंबर वन, द ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए डिमांड किया जाएगा पैसा. अच्छा, कितना पैसे का डिमांड है बच्चों लोग? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है. अच्छा, एंड चिल्ड्रन, अगर वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन चेंज होगा तो क्वांटिटी ऑफ मनी दैट इज बीइंग डिमांडेड विल आल्सो अंडरगो अ चेंज, दैट वी शुड actually understand children. Okay, now as we said like children, this topic is very important because we are going to analyze what is known as the Keynesian approach to the demand for money. Now Keynes children is very is almost like the pioneer of the macroeconomics that we study. उन्होंने एक theory दिया हुआ है जिसको हम लोग यहाँ पे जानते हैं as a liquidity preference approach to money. Okay, and they are focusing on two different like features of money, that money is used as a medium of exchange, and secondly children, that money can also be used as a store of value. अच्छा, अभी केन से पहले ओके बाकी के इकोनॉमिक्स जो थे वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू, ये वाला जो फंक्शंस है मनी का, दे आर नॉट एबल टू गिव द ड्यू इंपॉर्टेंस टू दिस फंक्शंस ऑफ मनी. तो बाद में बच्चों लोग लॉर्ड जे एम केन्स ने एक बुक लिखा था, बुक का नाम था द थियोरी ऑफ जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी. अच्छा, और उन्होंने बताया था बच्चों लोग कि किस तरीके से डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन द स्टोर वैल्यू ऑफ मनी एंड द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी वी कैन से. अच्छा, सो these are the two different functions, and if you want to understand the entire topic children, we need to answer two questions as I told you earlier. And what are those two questions children? The first question says that why is money demanded, or why do people prefer liquidity? लोगों को पैसे की जरूरत होती क्यों है? और दूसरा कि like we also need to understand what are the different determinants of demand for money, or children, demand for money sometimes is also referred to as liquidity preference. कि like why do people prefer liquidity? अच्छा, now let's try to understand. People demand money in the form of cash because people prefer liquidity. Now according to Keynes, people have a fear, or they have a lot of uncertainty children regarding the future, so they always want to hold some money with them. So money children is a barometer of the degree of our distrust of our calculations and conventions of the future. but चलो हम लोग जितना फ्यूचर के बारे में टेंशन में होते हैं ना, उतना हम लोग अपने पास पैसा रखेंगे. ये जो फियर होता है, ये अनसर्टेनिटी होता है बच्चों, इट मेक्स अस नर्वस एंड देन वी बिकम डिस्क्वाइट एंड देन वी गेट टेंस्ड. हाँ, लेकिन वहीं पे बच्चों लोग अगर आपके पास कैश रहेगा, अभी जैसे कि बच्चों लोग सब लाइक कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन और दिस पैंडेमिक ऑफ कोविड-19. Now those people who had a habit of saving, और जिनके पास कैश है, वो लोग एकदम रिलैक्स रहेंगे. लेकिन जिन लोगों को सेविंग्स की आदत नहीं थी बच्चों लोग, तो आई थिंक देयर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी लल और डिस्क्वाइट. अच्छा, जिनके पास पैसा है बच्चों लोग, उनके पास क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आता है, करेज आएगा,
because they can use that money as a medium of exchange and a store of value. Now we will come across children, like what are the different motives why people demand money. So यहाँ पे here it goes like this. What are the different motives for holding money? तो मनी होल्ड करने के लिए बच्चों कौन कौन से अलग अलग मोटिव्स आते हैं. तो सबसे पहला मोटिव तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है. इट्स कॉल्ड एज द ट्रांजैक्शन मोटिव. Why do people demand money? Because they want to carry out the day-to-day transactions. Then we also have the precautionary motive. We want money, children, because we want to take precautions regarding the future. If I want money because I want to make money out of that money, now that is called as the speculative motive. So one by one, children will just try to analyze what are these different motives that we actually have behind or which determine the demand for money. The first one, children, is the transaction motive. And as I said, children, that people require money to carry out day-to-day transactions. Children, very simple that people do not receive income daily. Children, कुछ लोगों को महीने में एक आध बार पैसा मिलता है, right? अच्छा. Now this income which is received once in a month or a week, now we need to spend that money throughout the entire month. मतलब बच्चों लोग सक्सेसिव इनकम रिसीव करने में बहुत बड़ा गैप आता है, लेकिन सक्सेसिव खर्चा करने में ज्यादा गैप नहीं आता, और उसकी वजह से हम लोगों को अपने पास हमेशा कुछ पैसा रखना पड़ता है बच्चों लोग. अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, सो देयर इज नो गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड. सो ट्रांजैक्शन मोटिव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. एक होता है इनकम मोटिव और एक होता है बच्चों लोग बिजनेस मोटिव. नाउ व्हेन व्हाट इज द डिफरेंस दैट वी हैव चिल्ड्रन? इट्स वेरी सिंपल एज वी कैन से हियर, दैट इज कि if I am referring to income motive, this is about the individual people, the households. business motive मतलब बच्चों लोग firms, business enterprises, इनका डिमांड आता है. अच्छा, इनकम मोटिव क्या होता है? वही लोगों के ट्रांजैक्शंस के लिए लोग पैसा डिमांड करते हैं. अच्छा, विच इज बेसिकली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ईदर सैलरी और द वेज अर्नर्स. अच्छा, मतलब क्या बच्चों लोग कि मेरे को पगार महीने में एक बार आएगा. अच्छा, कभी वीकली या फिर अगर मजदूरी कर रहा हूं तो डेली भी मिल सकता है. Now money is required by these people to carry out transactions of all kinds. जैसे कि बच्चों लोग मुझे अपने घर का रेंट भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया बच्चों लोग, ग्रोसरी का बिल है, या फिर बाकी के कुछ पेमेंट्स हो सकते हैं. अच्छा, as I said children, like interval between two incomes is basically a month. So people require to hold money to meet these daily payments. अच्छा, जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा बच्चों, आपने पैसा जो खर्चे के लिए रखा है वो भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा? डिमिनिश होता जाएगा. एट द एंड ऑफ द मंथ चिल्ड्रन द बैलेंस कैन इक्वल 0. तो ये बच्चों इंडिविजुअल लोगों के बारे में होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस चिल्ड्रन के लाइक हाउ वाज द ट्रांजैक्शन मोटिव अराइज इन द बिजनेस सेक्शन चिल्ड्रन. सो बिजनेस, जैसे इंडिविजुअल लोगों को बच्चों पैसा लगता है, वैसे ही बिजनेसमैन को भी पैसा लगता रहेगा. क्यों? उनके भी तो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं. जैसे कि उनके पास चलो पैसा आने में मंथ होता है या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है. हाँ, मतलब क्या होता है कि लाइक देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड रियलाइजेशन ऑफ इट्स वैल्यू. आज मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसको बेच के मुझे पैसा कमाने में चलो टाइम जाएगा. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू पे कीप मनी टू पे वेरियस बिल्स ना. जैसे कि बिजनेसमैन को चलो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बना है, रेंट भरना है, अच्छा रॉ मटेरियल का बिल पे करना है, वेजेस पे करने हैं, एटसेट्रा. सो आई थिंक लाइक हियर as in the case of individuals, the money held at the beginning of the income interval period is high and declines very like as the time passes, we can say. Okay, now question arises children के लिए हम लोग अपने पास कितना पैसा खर्चे के लिए रखते हैं, ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. So here children we have the determinants of the transaction demand for money. Children, the first one, आप कितना पैसा खर्चे के लिए अपने पास रखोगे ये आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा. सीधी सी बात है. मतलब हायर इनकम पीपल होल्ड लार्जर अमाउंट ऑफ मनी एंड लोअर इनकम द पुअरेस्ट पीपल दे हार्डली होल्ड एनी कैश एज देयर इनकम चिल्ड्रन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो चलो अगर मैं एक 25,000 का सैलरी ले रहा हूँ, तो चलो आप लोगों को पता है मुझे अपने घर पे लाके कुछ 10,000 रुपए देने हैं, बोले कि ये महीने के खर्चे के लिए. लेकिन वहीं पे बच्चों अगर मैं 50,000 रुपए कमाता तो हो सकता है कि मैं घर पे 20,000 रुपीज दे सकता हूँ ना खर्चे के लिए. जो 1 लाख रुपए कमा रहा है उसकी वाइफ 20,000 में मानेगी नहीं, वो 30-40,000 रुपए दे सकता है उसको. मतलब आपने देखा आपके इनकम के हिसाब से आपका डिमांड फॉर मनी चेंज होता जाएगा. दूसरा होता है चिल्ड्रन, इट्स द टाइम इंटरवल. नाउ इफ यू आर रिफरिंग टू द टाइम इंटरवल,
तो दो सक्सेसिव इनकम के बीच में बच्चों लोग कितना टाइम आता है? अगर सपोज बच्चों लोग ज्यादा वक्त है, लॉन्गर टाइम इंटरवल बिटवीन successive incomes, then more cash will be required children and vice versa. बच्चों लोग मुझे एक महीने के बाद सैलरी आने वाला है तो मैं थोड़ा ज्यादा पैसा, मुझे हर हफ्ते बच्चों लोग सैलरी आने वाला है तो मैं थोड़ा कम पैसा रखूंगा तो भी चलेगा। और जो लोगों को डेली इनकम्स मिलते हैं ना, तो उन लोगों को मतलब दे डोंट नीड टू होल्ड मच कैश चिल्ड्रन, जस्ट फॉर द रीजन दैट आई थिंक मैनी पीपल आर अवेयर दैट एवरी डे दे आर गोइंग टू मेक द मनी। फिर हमारा डिमांड फॉर मनी चिल्ड्रन आल्सो डिपेंड्स अपॉन दी प्राइस लेवल। बच्चों इन्फ्लेशन के टाइम पे पीपल होल्ड मोर मनी क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन वहीं पे बच्चों रिसेशन होता है तो वहां पे होल्ड करने के लिए कुछ होता नहीं, तो ऑटोमेटिकली liquidity preference is going to reduce your children, and then we also have the volume of employment. Okay, बच्चों अगर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तो ज्यादा आउटपुट हो जाएगा, तो ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगे और फिर डिमांड फॉर मनी इज ऑल्सो गोइंग टू राइज। तो चिल्ड्रन ये अपना पहला मोटिव हो गया विच इज एक्चुअली नोन एज द ट्रांजैक्शन मोटिव। उसके अंदर क्या था? इनकम मोटिव और बिजनेस मोटिव, और ये उसके फैक्टर्स थे चिल्ड्रन। दूसरा जो मोटिव होता है बच्चों जिसकी वजह से लोग पैसा डिमांड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रिकॉशनरी मोटिव। क्या बोलेंगे इसको? प्रिकॉशनरी मोटिव। नाउ हाउ डू वी एनालाइज दैट चिल्ड्रन? प्रिकॉशन मतलब आपको पता है कि लाइक वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर बच्चों लोग सर्टन होता है क्या? अनसर्टन। अनसर्टन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लाइक हम लोगों के माइंड में ना बहुत सारे कंफ्यूजन डाउट्स आते हैं बच्चों लोग, अच्छा, जो हमारे कॉन्फिडेंस को और करेज को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। और ये जो फ्यूचर के बारे में हमारे मन में अनसर्टेनिटी होता है बच्चों लोग, वहां से प्रिकॉशनरी मोटिव जन्म लेता है। सो पीपल जनरली होल्ड एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी ओवर एंड अबव द रिक्वायरमेंट is for meeting some contingencies, require certain expenditure, and for unforeseen opportunities of advantageous purchase. अच्छा, मतलब क्या होता है चलो? पीपल वांट टू मीट दिस अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। जैसे कि घर पे कोई बीमार हो सकता है, अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया चलो, या फिर हो सकता है कि लाइक कुछ इमरजेंसी आ गई। हाँ, सो मनी इज केप्ट टू मेकअप फॉर ऑल द फॉल इन इनकम ड्यू टू टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अभी बच्चों लोग, कुछ लोगों ने देखा रहेगा 5-6 महीने के लिए उनके जॉब्स चले गए थे, तो लोग कुछ पैसा होल्ड करके रखते हैं ना, ताकि अभी मेरे पास जो पैसा मैं ऐसे ही उड़ाऊंगा नहीं, मेरे को पता नहीं बच्चों लोग कि लाइक सब कुछ रेगुलर कब होगा। सो पीपल होल्ड कैश टू मीट दिस अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, या फिर इट माइट आल्सो बी टू टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट्स। जैसे कि कुछ सिक्योरिटीज के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो वी जनरली गो टू परचेज द सिक्योरिटीज। अच्छा, जो प्रिकॉशनरी मोटिव का डिमांड होता है बच्चों लोग, जस्ट लाइक द ट्रांजैक्शन मोटिव आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। मतलब आप प्रिकॉशन के लिए कितना पैसा रखोगे बच्चों, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली चिल्ड्रन, इट विल बी डिटरमाइंड बाय योर इनकम। मतलब रिच पीपल विल कीप मोर अमाउंट फॉर प्रिकॉशन एंड द पुअर पीपल विल कीप लेस मनी फॉर प्रिकॉशन। अच्छा, या कंपनीज कितना पैसा रखते हैं उनके टर्नओवर के डिपेंड करता है। स्मॉलर फर्म्स चिल्ड्रन, दे आर गोइंग टू कीप लेसर अमाउंट। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें होती है बच्चों लोग, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज होते हैं बच्चों लोग। अच्छा, जैसे कि पॉलिटिक्स में कुछ अनस्टेबिलिटी आ गया तो फर्म्स टेंड टू बिकम मोर कॉशियस एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। ओके, नाउ चिल्ड्रन, टू एक्सप्लेन दिस ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन डिमांड फॉर मनी, वी मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। यहाँ पे एज यू कैन सी चिल्ड्रन, दैट इज वी गॉट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस चिल्ड्रन। एज फार एज द एक्स एक्सिस इज कंसर्न, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है। क्या डिफाइन किया हुआ है बच्चों लोग यहाँ पे? दे डिफाइनिंग द ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। क्या दिखा है? ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन डिमांड फॉर मनी। अच्छा, ऑन द वाई एक्सिस चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द मनी इनकम ऑफ द पीपल, लाइक लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, फिर डिमांड फॉर मनी का जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा बच्चों लोग, विच इज एक्चुअली स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड्स, जिसको हमने यहाँ पे नाम क्या दिया हुआ है? वी जस्ट नेमिंग दैट चिल्ड्रन एज L1। क्या नाम दिया हुआ है? L1। इट्स अ फंक्शन ऑफ इनकम चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या होता है कि जब इनकम लेवल कम रहेगा, ओके, इट्स लाइक दिस चिल्ड्रन, कि अगर आपका इनकम लेवल कम है बच्चों लोग, क्या बोला मैंने? अगर आपका इनकम लेवल थोड़ा कम है तो उस टाइम पे चिल्ड्रन आपका डिमांड फॉर मनी भी क्या होगा? कम होगा।
लेकिन सपोज चिल्ड्रन बाय एनी चांसेस अगर आपका इनकम बढ़ गया है, योर न्यू इनकम इज योर चिल्ड्रन, then you will realize that because your income has increased, that is why children your demand for money has also increased, right? Acha, it means children like wherever there is an increase in the demand for money, you observe that there is also increase in the increase in the income, then there is increase in demand for transaction money, right? Acha. So here we go children with the explanation that we have for the diagram. That is the precaution demand for money and the transaction demand for money are both dependent upon money as a medium of exchange, and they are influenced children by income. So that is why we say L1 is a function of income. So L1 बच्चों लोग यहाँ पे income का function होता है. Okay, it is basically not determined by anything like the demand for money is not determined by the interest rates that we have in the market, but only by the income levels that we have. Okay, so the above diagram explains the relationship between demand for money and the income levels that we have. The demand for money for this motive is not influenced by the rate of interest at a very high rate. So people do not, or they might decide to reduce the cash balances to earn additional income offered by the attractive interest rates. However, the demand for money for transaction and precaution motive is interest inelastic, and it is income elastic children, we can say. So हमने जो ML line draw किया children, which shows that the demand for money, it is unaffected by the rate of interest. तो rate of interest से unaffected होता है चलो, वो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? तो उसके लिए भी हम लोग एक आध डायग्राम बना सकते हैं. Now the diagram that we can have here children, here it is. On the x-axis children, we have got the transaction and precaution demand for money. Then on the y-axis children, we have got the interest rate of money, right? अच्छा, फिर डिमांड फॉर मनी जो आता है उसके लिए हम लोग एक स्ट्रेट कर्व बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व. इट मींस चिल्ड्रन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है ना, यहाँ पे डिमांड फॉर मनी, मतलब डिमांड फॉर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिटरमाइन नहीं होता है. दैट इज व्हाई वी से दैट L1 is actually function of Y and not R, that is rate of interest children. So L1 is transaction and precaution और Y का मतलब होता है income. Now children, the last motive that we have for money is actually called as the precautionary motive. कौन सा motive है? Precautionary motive. I'm just giving you a hint of this. People demand money for speculative motive is related to the store value of money. अच्छा, इसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन में बच्चों लोग कैसे हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे फोकस किया था ना, जबकि स्पेक्युलेटिव डिमांड इज आल्सो कॉल्ड एज द एसेट डिमांड फॉर मनी. सो डिमांड मनी इज डिमांडेड एज एन एसेट चिल्ड्रन, वी कैन से. ओके, सो हियर पीपल, लोगों के पास दो अल्टरनेटिव्स है बच्चों. इधर दे कैन होल्ड कैश और दे कैन होल्ड सम फाइनेंशियल एसेट्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स और इक्विटीज. अच्छा, speculative demand is also related to uncertainty. So I think like whenever people they want to gain by purchasing financial assets at a low price and selling them at a high, तो चलो मार्केट में से शेयर्स बॉन्ड्स आप सस्ते में खरीदो, बाद में उसको महंगा बेचो और आप उसमें से कुछ प्रॉफिट कमाओगे, आपका कुछ कैलकुलेशंस होता है. हाँ, सो दैट इज व्हाई चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज स्पेक्युलेटिव डिमांड मनी. जिन लोगों को लगता है बच्चों लोग कि बॉन्ड्स और इक्विटीज का प्राइस फॉल होने वाला है बच्चों लोग, तो लोग अपना परचेस क्या करेंगे? डिले करेंगे. हाँ, जिनको लगता है कि लाइक इट्स गोइंग टू इंक्रीज इन द फ्यूचर, तो आई थिंक दे आर गोइंग टू अनलोड. अदर्स हु डू नॉट मतलब फ्यूचर में जाके शेयर्स का प्राइस बढ़ने वाला नहीं है तो अभी वो लोग बेच सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन वी से दैट हियर द डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो बच्चों ये वाले डायग्राम में अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव, राइट? अच्छा, देन ऑन द वाई एक्सिस चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू शो द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अच्छा, फिर आता है बच्चों यहाँ पे डिमांड फॉर मनी का कर्व जिसको हम लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस करके बुलाते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट चिल्ड्रन एज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस, LP. अच्छा, मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि लाइक इनिशियली व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज वेरी हाई, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज हाई, वी सॉ दैट पीपल डिमांड लेस मनी. जैसे ही उन्होंने देखा बच्चों लोग वहां पे कि लाइक
the rate of interest have fallen down in the market. तो जैसे ही rates fall होते हैं तो people demand more money children. तो ये देखो people are demanding more money. अच्छा जैसे आगे उन्होंने देखा कि लाइक और इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो लेकिन फिर चलो अकॉर्डिंग टू केन्स द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट दे नेवर फॉल बिलो 2%. तो आई थिंक 2% तक हमारा ये जो कर्व है वो बच्चों लोग डाउनवर्ड स्लोप करता जाएगा, लेकिन उसके आगे बच्चों लोग एज यू कैन ऑब्जर्व इट बिकम्स पैरेलल टू विच एक्सिस, एक्स एक्सिस. ये मैं आपको और एक शॉर्ट नोट पढ़ाऊंगा जिसका आंसर रहेगा बच्चों लोग लिक्विडिटी ट्रैप करके बोला जाता है उसको. बट होप सो यू अंडरस्टूड दिस आंसर चिल्ड्रन. आपको सिर्फ 3 मोटिव्स बाहर करके रखने हैं. ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है चैप्टर नंबर 10 के साथ में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट. सो एग्जाम में अगर आपको पूछा एक्सप्लेन द केन्स थियरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस तो आप ये आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो. वहां पे शॉर्ट में दिया था, यहाँ पे डिटेल में दिया है. वी ओनली हैव टू स्टडी 3 डिफरेंट मोटिव चिल्ड्रन, दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशन मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव. ओके, so that's all for today children. In the coming lecture I will be teaching you what is the total demand for money, liquidity trap का short note बताऊंगा और फिर we will also see some another approaches to the demand for money. So that's all for today children. See you in the next lecture with the continuation of the topic and bye everyone.